हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन ज़मीन पर, कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन ज़मीन पर, हम रश के आसमान थे, अभी कल की बात है। Woman plays a significant role in the development of communities. She often takes leadership roles in organizing the communities. लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने औरत के किरदार को मापने के लिए कई सारे पैमाने बना रखे हैं, जैसे कि औरत की शक्ल सूरत, औरत की आवाज़, औरत के हाथों से बनी गोल रोटी, औरत के हाथों बना खाने का नमक, औरत के हाथों पर चढ़ा मेहंदी का रंग। जब इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के औरत जर्नलिज्म में आई, when she came in the field of journalism, it was 18th century and there started a new chapter. It was a great change, and during 19th century she started periodicals and she was covering the war news, besides social news, and it was the rise of civil rights movement of United Nations which provided a great opportunity to women to come in the field of media. Nowadays, number of girls and women are graduating with media and mass communication and journalism. They are playing tremendous role in shaping the public discourse and influencing policy and deriving social change. And women in media are role models for gender sanitization for the society. But now question arises, if it is so, then why still number of women in media are less? What is the reason and what is the role of women in the media? Let's talk in detail about this. Today we do have video journalist Madam Suchita Das, and besides her there is journalist Masarat Shah. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद। सुवाग से करते हैं हम आपका स्वागत। Thanks a lot. Thanks a lot. I would like to start with Sushita ma'am. Sushita ji, you're a cinematographer, you're a freelance producer director, and you have worked with number of news agencies, and still you're working with few news agencies. आप हमारे अपने बारे में हमें tell us something about you. My name is Sushita और मैं एक वीडियो जर्नलिस्ट हूँ. So मुझे अच्छा लगता है like I want to convey the message to society through the lens. जैसे कोई भी स्टोरी को मैं अपने कैमरे में कैप्चर करके उसको like through the real emotions, I just want to portray that story to people, and I love my work. And I'm a passionate learner also. So मुझे अपने काम से प्यार है और मुझे अच्छा भी लगता है कि हर तरह की चीज़ों को लोगों के सामने रखना. I love to do it. तो ये जो सिनेमाटोग्राफी का कोर्स वगैरह है आपने कहाँ से किया है, शुरू से थोड़ा सा बताइए. Yeah, definitely. I done from BFTI student. BFTI is in Odisha. Its full name is Biju Patnaik Film and TV Institute of Odisha. So I finished my diploma in cinematography there, and then I worked in Doordarshan for 1.5 years. And before that, yeah, I mentioned here. Before that, I worked as an assistant cameraman, film cameraman. Okay. So, and I done 3 to 4 language movies. I think I done 8 movies in 3 to 4 languages. Okay. And then my father was little bit worried कि लड़की है तो that always every जो कि पेरेंट्स को रहता ही है. या थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है, सेफ्टी का भी होता है. सो एंड ऑब्वियसली एक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन पेरेंट्स को था. मुझे प्रॉब्लम थी कि एक जो होता है ना कंस्टेंट बनी फ्लो वो नहीं था फिल्म में. एंड पेरेंट्स को था कि सेफ्टी का इशू था उनको. तो फिर देन आई जॉइन इन दूरदर्शन एज एन कंसल्टेंट. फिर मैंने वहाँ काम किया स्टूडियो में एंड 1-1.5 साल मैंने वहाँ काम किया. देन अगेन लाइक आई वाज ट्राइंग टू जॉइन समवेयर एल्स लाइक because everyone wants to like grow and develop. So मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए like मुंबई एंड दिल्ली कहीं जाना चाहिए. So like then I joined in Parliament of India Lok Sabha TV, and I'm very fortunate that I got a chance to work there, and a lot of things I learned from there.
because though I am from film line, and I didn't have any kind of knowledge about television, and whatever I gained knowledge about television, I got it from there. Okay. So I am so fortunate that I worked in Parliament of India. I worked for Lok Sabha TV. सो नाइस। Yeah. मसर जी कई सारे अखबारात के साथ काम करती रहती हैं जी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन मीडिया? पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपके Welcome. प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया। ये जो आपका सवाल है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन मीडिया, आई गेस देयर इज़ नो एनी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ वुमेन इन मीडिया बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी टर्म एज ए फीमेल जर्नलिस्ट. When it is journalism, it is male journalist and female journalist. I don't find that there is any kind of, gender. If I'll say female journalist, so I'll become a bias. So there is nothing like male journalist and female journalist. एक चीज़ हो सकता है कि as far as women are concerned, when she is a journalist, जब वो मीडिया में काम कर रही है, वो औरतों की प्रॉब्लम को, वो औरतों के जज्बात को, वो औरत के एहसासात को अच्छे से समझ सकती है। जी। So I don't find, because I mean I am in this field since now 3 years, मगर मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पेसिफिक रोल है वुमेन का या कोई स्पेसिफिक रोल है मैन का। हाँ, औरत काम कर सकती है बोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन एज वेल एज डेवलपमेंट फॉर द women also. As for and apart from this, she can work for the betterment of society in a better way because she is herself who is the first unit of making a society. So I don't agree in the term female journalist. Yes. No, my question was like this, that what is the role of women in media? I'm not talking that we are segregating it. No, it is not like that. I just asked what is the role of media, role of women in the media? औरत का मीडिया में रोल जो है ना वो बहुत बढ़िया है बिकॉज आई टोल्ड यू एज ए वुमेन व्हेन शी कम विद सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द वुमेन, रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द वुमेन, रिलेटेड विद सम पर्सनल इश्यूज ऑफ वुमेन, देन शी कैन herself वर्क इन अ वेरी बेटर वे बिकॉज शी इज herself a woman. वो खुद भी एक औरत है तो वो औरत के जज्बात को और औरत की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकती है और उसको अच्छी तरीके तो आपको लगता है ऐसा कि औरत ज्यादा अच्छे मेल्स को कंपेयर करके अगर हम देखें कंपेयरली, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए वेरी पेट्रियार्चिकल सोसाइटी जहाँ पर जेंडर बायस तो है ही, जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही, मगर अगर एक औरत के इश्यूज पर काम करे तो वो ज़्यादा उसमें जान लगा के कर सकती है बिकॉज शी इज़ हर सेल्फ इन दिस और दैट वे सफरिंग फ्रॉम दैट. तो इस तरह से एक औरत मुझे लगता है कि औरत की प्रॉब्लम्स को अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं इवन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. अगर हम इसी सवाल को यूं समझ सकते हैं तो जो मीडिया में आने से पहले औरत मीडिया में नहीं थी तो वो उन सेंसिटिव इश्यूज को ज्यादा टच नहीं किया जाता था मेल्स के जरिए. जो आजकल की औरत अगर वो फिल्म मेकर है, जर्नलिस्ट है, प्रिंट मीडिया के साथ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ है, उन इश्यूज को वो सामने लाती है. हाँ. और बोल्डली लाती है. इससे पहले शायद ऐसा नहीं होता था, उस हद तक नहीं होता. हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि बहुत सारी औरतें जिन पर चाहे डोमेस्टिक वायलेशन होती थी या और कोई प्रॉब्लम होती थी, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर एक आदमी के पास नहीं आना चाहती है. तो जब विमेन जर्नलिस्ट्स हैं, जब औरतें इस फील्ड में आई हुई है तो वो वाली औरतें जो सफरर है, जो विक्टिम्स है, they can easily share their problems and with it's not only women कि that woman will help only woman, she is going to help all the society, all. और पूरी सोसाइटी के चीजों को, इश्यूज को वो एड्रेस कर सकती है एक औरत होने के नाते, क्योंकि उसका एक ममता का एक एस्पेक्ट रहता है और एक नजर रहती है, कीन सुपरविजन रहता है सोसाइटी पर. उस लिहाज से वो बेटर काम कर सकती है. तो मैडम सुशीता जी, वुमेन आर ऑपरेटिंग एज एडिटर्स, जर्नलिस्ट्स, जैसे फिल्म मेकर्स, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बट स्टिल नंबर ऑफ वुमेन इज वेरी लेस इन द मीडिया. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ओनली 30% ऑफ वुमेन आर ग्लोबली इन्वॉल्व्ड दिस टाइम इन द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग टोटल. I will definitely mention that the gender biased is there, and because still people think that men are more stronger than women.
अगर मैं अपनी बात बोलूं, अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें, मतलब लाइक जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो आपकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होते हैं, उनको लगता है कि जो एक मैन है, they can work any kind of situation, they are strong, they can work physically, stamina उनका ज़्यादा होता है वुमेन से, they take it, उनका ये assumption है, it's not our assumption, women का नहीं है, women can do it, they are thinking like this, they are thinking like that. So उनका होता है कि, और जो वुमेन है वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ज़्यादा, उनको लगता है कि वो फ्लेक्सिबल वर्क नहीं कर सकती है, हार्ड वर्क नहीं कर सकती है, एंड टाइम बाउंड होते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दे थिंक, कि इसीलिए क्या होता है ना कि फिर वो चांस ही नहीं मिलता है वुमेन को आगे आने कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेल्स आर नॉट रेडी टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, वो आने नहीं देना चाहते हैं? ये पहले था इस फील्ड में मसरत जी. हाँ, औरतों का सच में इस वाले फील्ड में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है. इसके बहुत सारे कारण हैं, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हर एक स्टेट में अपने अपने तरीके का, मगर मैं आपको कश्मीर का बता सकती हूँ. कश्मीर का कल्चर, हमारी सोसाइटी, वी आर लिविंग इन ए पेट्रियार्चिकल सोसाइटी, जहाँ पर हम अपनी चेन्स को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, या जो चेन ब्रेक करना चाहते हैं उसको सपोर्ट नहीं मिलता है. बिल्कुल. नंबर 1. नंबर 2 इज समटाइम्स क्या होता है कि औरत समझती है कि ये वाला फील्ड जो है उसके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज नाउ शी हैज़ टू वर्क विथ मैन. वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट. हमें अपना माइंडसेट, नहीं, वो तो हर फील्ड है दैट वुमन इज गोइंग टू वर्क विथ मैन, बिकॉज कोई ऐसा अलग इदारा है नहीं जहां मेल फीमेल नहीं हो. कहीं ऐसा तो नहीं है कि औरत को कभी अपनी एबिलिटीज में भी शक होता है कि दैट शी इज नॉट सो एबल टू डू दिस? If we compare the journalism with other professions, here we have to work in the field. यहाँ पर हमें फील्ड से काम करना है. टेबल चेयर वाला मसला है नहीं. नंबर 2 इज, शायद जो औरतें कुछ डायरेक्टर्स होते, प्रोड्यूसर्स होते, या कॉलमनिस्ट होते, या आर्टिकल्स बनाते हैं, वट एवर राइटिंग्स, शायद औरत के पॉइंट ऑफ व्यू को, या जो औरत लिखती है उसको आगे नहीं किया जाता है. नंबर 2 इज लेस सैलरी. समटाइम्स फीमेल्स थिंक कि नहीं जी, हम जितना काम करते हैं हमें उस तरीके की सैलरी जो है, सैलरी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. नंबर 3 इज harassment in this field, because women, आपने खुद बोला कि औरतों की परसेंटेज बहुत ही कम है. only 30% women are globally associated with, directly or indirectly, with journalism. So it is because sometimes people are facing harassment in their working places. ये भी एक चीज़ है. another thing is, जैसे कि मैंने कहा कि ग्राउंड पर काम करना होता है, तो ये वाला काम जो है जिसमें टाइम बाउंड नहीं है, and if a woman is married, she has to take care of the family, many kinds of responsibilities. She has to take care of the children, she has to take care of the in-laws, she has to look after every society. When she will not get the cooperation from her in-laws, when she will not get the cooperation from her husband, when she will not get the cooperation from other people, how will she flourish? So exactly. people leave this field क्योंकि उनको cooperation नहीं मिलता है. वरना यहाँ पर न तो टैलेंट की कोई कमी है, न यहाँ पर स्किल्स की कोई कमी नहीं है हमारे कश्मीरी यूथ में, स्पेशली वुमेन. आप देख लीजिए, आज नीट देख लीजिए, बाकी एग्जामिनेशन जो भी हुआ उसमें औरतों ने सबसे बड़े एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए. परसेंटेज देख लीजिए, यहाँ पर मेल्स की परसेंटेज देख लीजिए फीमेल्स की. तो सुशिता जी क्या इत्तेफाक करती? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट व्हाट Masra ji said? Yeah, definitely. I agree. I do agree. I do agree with her statement that कभी-कभी फैमिली से भी आपको उतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, एंड फ्लेक्सिबल. और दूसरे लोगों को लगता है, जो हमारी बॉस है, जो भी है, तो उनको लगता है कि ये लेडी गर्ल्स जो होते हैं, वुमेन्स जो होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल टाइम पे ही काम कर सकते हैं, नॉट दैट हार्ड वर्कर होते हैं, नॉट दैट कोई किसी भी टाइम पे दे आर अवेलेबल होते हैं. सो उनकी अवेलेबिलिटी पे शक करते हैं. तो ये उनकी एजम्पशन है, और मैं चाहती हूँ, बट ये पहले कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ,
it was there. Now gradually mindset is Things are changing. Yes, changing, yes, yes. and ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, and hopefully ये आगे जाके ये काफी चेंज होगा, इन आई थिंक काफी चेंज होगा। और ये जो सुचिता जी, आजकल के बच्चे जब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कई सारे और प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, लेकिन जहां तक मीडिया या जर्नलिज्म का ताल्लुक है इसमें नहीं आना चाहते हैं, क्या वजह है? या मैं तो यही कहूँगी कि फैमिली पहले ज़माने में थोड़ा था कि वही था कि नाइट ड्यूटी का कभी लग सकते हैं आपको, कभी नाइट पे जाना पड़े, क्योंकि ये हमारा काम ही ऐसा है कि ये तो ऐसा नहीं कोई फिक्स टाइम, कोई फिक्स इंसिडेंट होगा, आपको फिक्स इंसिडेंट की टाइम क्या कहें? ये मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि यही एक पॉइंट है। इफ फीमेल इज मैरिड, शी नीड कॉपरेशन अनटिल एंड अनलेस ए फीमेल। चलिए आप मैरिड लोगों की बात छोड़िए, मैं अनमैरिड यंग फीमेल्स की बात करूंगी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ रीजन कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पर हमें फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है, बाई का सपोर्ट नहीं मिलता है, Exactly. और फिर शादी हो जाती है तो हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब तक आदमी अपना माइंड सेटअप चेंज ना करे कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ औरत भी कर, देख लीजिए हमारे कश्मीर की बात कर लीजिए, पायलट्स है, वी हैव पायलट्स, कश्मीरी फीमेल्स जो इस वक्त पायलट्स है, वी हैव रेनोवर डॉक्टर्स, वी हैव रेनोवर लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, क्या नहीं है जो हमारी कश्मीर की लड़की ने करके नहीं दिखाया। अब क्या है कि उनको अच्छे से सपोर्ट मिलता है, वो नर्स करते हैं। सुचिता जी, मुझे ये बताइए, योर सिनेमेटोग्राफर एंड योर फ्रीलांस मीडिया पर्सन आल्सो, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज अदर मीडिया, तो किन किन मुश्किलात का आपको, व्हाट डिफिकल्टीज हैव यू फेस्ड ड्यूरिंग योर करियर टिल नाउ? आपको कई सारी मुश्किलात तो आई होंगी, उस बारे में हमें बताइए। समटाइम्स लाइक या हुई है मुझे कभी कभी, जैसे मैं कुछ चाहती हूँ, जैसे मैं अपनी तरीके से चाहती हूँ पोर्ट्रेट करना कुछ चीज़ों को, फिर मैं प्रोड्यूसर को कन्वे कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स प्रोड्यूसर लाइक जब मेल और फीमेल प्रोड्यूसर हो, लाइक दे नेवर because sometimes vibes never match each other. I mean to say, जो आप सिनेमाटोग्राफर है ना, इट्स अ टेक्निकल जॉब, कैमरा वर्क बहुत डिफिकल्ट है। हाँ. और मेरे ख्याल में हम बोलते हैं ना, वो शुड नॉट जस्ट कैटेगराइज द वर्क, हम जेंडर बेस पे नहीं रखना चाहिए कि मेल्स कर सकते हैं फीमेल्स नहीं कर सकते हैं, आपने वो करके दिखाया है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द टेक्निकलिटीज, कैमरा वर्क इज डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स कंपेरेटिवली, अगर वो सोचे, वैसे तो नहीं है, लेकिन तो आपको वो उस लिहाज से क्या आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे नहीं करना, बिकॉज इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, समटाइम्स इज ए टीम वर्क, सो कभी कभी टीम में अगर ऐसा कोई मिल जाता है जिसके साथ आपका नहीं फ्रीक्वेंसी मैच करता है, देन इट बिकम प्रॉब्लम, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। अदरवाइज इस बिल्कुल भी नहीं है, इसे मतलब इतना क्रिएटिव है अगर चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ में, मतलब मुझे लगता है कि मैं आई एम ऑलवेज ब्लेंड व्हेन आई स्टार्ट माई वर्क, व्हेन आई टच माई कैमरा, मैं उसमें इतनी ब्लेंड हो जाती हूँ, आई फॉरगेट अबाउट द ऑल ओवर द थिंग्स व्हाट एवर हैपनिंग सराउंडिंग मी। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, पर्सनल व्यू है मेरी। लेकिन कभी कभी अगर टीम में कुछ ऐसा होता है तब भी जाके कुछ प्रॉब्लम आपको लगता है कि यार, क्योंकि वो फिर आउटपुट मिलता नहीं है। फिर आउटपुट तभी मिलता है ना जब टीम एक साथ जुड़े होते हैं, राइट? जब जुड़े नहीं होते तभी नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत कहीं भी नहीं। मेरा सवाल यूं था कि क्या हम फीमेल्स की बात करें, बच्चों की बात करें, लड़कियों की बात करेंगे, तो आप चाहेंगी कि और लड़कियां मीडिया में शामिल हो जाए? उनके लिए बताइए, क्या बताना चाहेंगी उनको? मैं तो चाहूंगी कि लाइक मतलब दे आर मोस्ट वेलकम टू दिस फील्ड, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें जैसे इफ यू आर ए डॉक्टर यू विल वर्क एज ए डॉक्टर, बट ये एक फील्ड है, आप डॉक्टर के साथ काम करोगे, आप पूरी सोसाइटी के लिए काम करोगे, आप एक मैसेज दोगे सोसाइटी को कि ये चीजें, दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। अभी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे बच्चे बच्चियां, खुसूसन अगर हम लड़कियों की बात करेंगे, दे शुड कम in the field of media. Yeah, definitely. I think this should come to मसरत ये बात कर रही थी stereotypes की कि हम we need support of father, brother, husband. So how we can eradicate this gap?
हाउ इसको गैप को कैसे कम, जेंडर गैप को कैसे कम किया जा सकता है? पहले मैं एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपने बोला था अभी कि क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मेनली जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो माँ बाप ही लेते हैं। अब क्या हुआ गया कि आजकल की सोसाइटी एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी बनी हुई है। हम हर एक चीज़ को पैसे की बुनियाद पर तोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बच्चा लॉयर ही बनेगा। लेकिन उसके बगैर भी फील्ड है। ये जो जर्नलिज्म का फील्ड है, दिस इज वन ऑफ द नोबल प्रोफेशंस एज वेल, क्योंकि एक तो हम अपनी सैनिटाइजेशन करते हैं, उसके बाद फिर सोसाइटी की भी सैनिटाइजेशन। सो इन अदर वे वी कैन से दिस इज अ सोशल वर्क ऑल्सो। तो जब तक हम एज ए पेरेंट्स जागे ना, समझे ना कि हमारे बच्चे की इंटरेस्ट किस में है, अगर उसकी इंटरेस्ट जर्नलिज्म में ही है तो जर्नलिज्म क्यों नहीं, हमें ये जो जेंडर बायस है उससे बाहर निकलना है। तो आपने कैसे इस प्रोफेशन को अपने लिए चुना? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि टच वुड आई हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। सबसे बड़ी बात यही है, मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। तो आपको डिफिकल्टी फील हुई कभी इस फील्ड में? मुझे कभी भी डिफिकल्टी फील नहीं हुई। लुक, आई टेल यू वन थिंग, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा नाजुक भी होता है और बड़ा मजे वाला भी होता है। आई कैन से ये एक गाड़ी के आगे वाले दो पहिए होते हैं, आगे वाला मर्द है, पीछे वाली औरत है, या पीछे वाली औरत है तो आगे वाला मर्द है। अनटिल एंड अनलेस जब तक हम सपोर्ट हासिल ना करें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट हासिल हुआ है। मतलब जनरली अगर हम देखेंगे कि डिफिकल्टीज इन जर्नलिज्म टू बी फेस्ड बाय गर्ल्स एंड वुमेन, एब्सोल्युटली यही तो है। जब तक हम सपोर्ट हासिल ना करें सोसाइटी की, और दूसरी बात ये नहीं है कि हम सिर्फ मर्दों को बोले कि मर्द सपोर्ट नहीं करते हैं औरत को भी औरत का सपोर्ट करना है। दैट्स द थिंग, बिकॉज इफ आई एम मैरिड, आई एम नॉट मैरिड टू माई हस्बैंड ओनली, आई एम मैरिड टू द होल हाउस। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस द गैप, जेंडर गैप? We have to get educated ourselves. We have to make our parents well aware about the profession जो हम करना चाहते हैं। हमने बहुत नामसाइद हालात देखे हुए हैं, तो एब्रप्टली हम बोलेंगे कि नहीं जी ये हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों जी जेंडर गैप को कैसे एड्रेस किया जाए, जो अभी सस्टेन किए हुए हैं ना जेंडर गैप जो अभी है, तो हाउ टू एड्रेस दैट जेंडर गैप? मैं तो यही कहूँगी कि ये धीरे धीरे मतलब माइंडसेट लोगों के चेंज हो रहे, पेरेंट्स की भी चेंज हो रहे, बच्चों के भी चेंज हो रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैम ने जब बोला ना कि एक वुमेन दूसरी वुमेन का कंपिटिटर ना समझ के, अगर हम सपोर्ट करें, वी रेज आवर हैंड टू फॉर अदर वुमेन, सो उसमें क्या होगा ना, एक दूसरे का हाथ खींचेंगे ना, मतलब पॉजिटिव वे में, तो इसमें क्या होगा ना, ये जो कमी है आप बोल ना, गैप है, ये जो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर इट विल बी। सो वी टेक इट लाइक, हमें लगता, मुझे लगता है कि मैं दूसरों को बोलती हूँ कि मेरा फील्ड अच्छा है, आप इस पे वो जो गैप होता है, जैसे बोलते ना, तो मैं बोलती हूँ कि ये बहुत, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कैसे कर लेते हो यार, इतने कैमरा, वजन वाला कैमरा उठा लेते हो, कर लेते हो। सुचिता जी, आपने कई सारे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे भी काम किया, जैसे देवदासनी, तो कैसे आपको ख्याल कैसे आया कि आपको इस सब्जेक्ट को टच करना चाहिए? इट वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम, क्योंकि ये इंडिया की कुछ पार्ट में है, सम पार्ट ऑफ इंडिया इट वाज, एंड गवर्नमेंट हैज एबॉलिश्ड बट स्टिल इट एग्जिस्ट। सो मैं जब मंदिर जाती थी, लाइक सो कॉल्ड इन उड़ीसा देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड पूरी टेम्पल, तो लॉर्ड जगन्नाथ जी के सामने मैंने देखे थे, जो मैं डॉक्यूमेंट्रीज में जिनकी इंटरव्यूज भी है, तो मैंने देखा था उनको, मतलब मैंने सुना, मतलब मैं सुनी थी उनको कि ये डांस करते हैं, मतलब एक रिचुअल है एक। सो एक होता है ना क्यूरियोसिटी, क्या होता है अंदर इनसाइड द टेम्पल, व्हाट शी इज डूइंग देयर। सो बट मैंने जैसे बड़ी हुई और मैं इस फील्ड में आ गई, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मुझे इस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी। When I start to research, then I came to know that apart from that rituals, they, because काम तो उनका वही था कि वो they became देवदासी in front of the गॉड and they served to God, but
like how according to time the whole system has been changed, and they became a prostitute, for their daily struggling life, and so मुझे लगा कि I have to like work for them, जो मुझे एक उनके लिए कुछ बनानी है जो लोगों तक एक मैसेज जाए कि what they are facing the problems. So then I like It's started very to nice work. of you, because I have seen that. So Masrat ji, what message you want to give the whole society as far as media and journalism is concerned? औरतों के हवाले से, लेकिन अभी जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके लिए भी क्या मैसेज जी। देना चाहेंगे? मेरा यही एक मैसेज है, जो यंग गर्ल्स या जो भी मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, जो भी है, आप इस फील्ड में आए हुए हो, आप इस, मैं स्पेशली जर्नलिज्म की बात करूंगी कि जो यंग गर्ल्स इस फील्ड में आई हुई हैं, अपना काम संजीदगी से कर लीजिए, अपना काम फेथफुली कर लीजिए. स्काई इज लिमिट फॉर एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि सब लोग सीखे हुए आते हैं. आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, और आप फीमेल्स हैं तो फीमेल्स की प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं. शॉर्ट कमिंग्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन मुझे बताइए, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, yes. तो इसमें दिक्कतों का सामना तो होता ही होता है. दिक्कतों का सामना होता ही है, होता आया है. लेकिन जब तक हम जैसे कि कुछ टैबूज रखे गए हाँ. हैं, चलिए आपका हस्बैंड आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन बाकी रिश्तेदार, सोसाइटी, हाँ, जब बात, ये तो माइंड सेटअप की बात है. जहाँ आप काम करते हैं, हाँ, तो वो तो बात करते ही हैं, नेचुरल सी बात है. अब बात ये है कि अगर हम उन चीज़ों को जहन पे ज़्यादा हावी ना करते हुए अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे कि मुझ में ये स्किल है, तो ये स्किल जो है इसको मैं क्यों ना आजमाऊं, क्यों ना करूं ये वाला काम. तो उसके बाद फिर नेचुरल सी बात है, सोसाइटी में भी लोग, यानी हमें उन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देना. क्योंकि देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, आई हैव ए वेरी फाइनेस्ट कॉर्नर फॉर women in my heart, not because I am myself a woman, no, not for, because women is made up of certain things like courage, like strength, like love. Look, I'll tell you one thing, after Almighty there is a woman who can produce something. अब आप देख लीजिए कि who is a creator. तो अब हम में कितनी कोरेज हो सकती है, कितनी स्ट्रेंथ है. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. एक वसी टॉपिक है, तो चलिए इंशाल्लाह फिर कभी बात करते हैं इस पे. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ तशरीफ लाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो. To ensure that women's voice are heard, media organizations should prioritize diversity, representation and gender equality. That's all for today. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. Be caring, be daring. जब तक के लिए खुदा हाफिज.